Hey guys, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. So till now I have covered these things in last 3 videos and you can refer them and link is there in the description box. So today we will read these things. Let's start. The first is demand schedule. So we know what is demand, and when we show quantity demanded of a given commodity with price of a commodity on table, then it is known as demand schedule. So demand schedule shows various quantity of a given commodity which will be demanded by consumer at various possible prices during a given period of time. So it is a table which represent various quantities of a given commodity which will be demanded by whom? By consumer at various possible prices at a given period of time. So demand schedule shows us relationship between price of commodity and its quantity demanded. Demand schedule is also of two types. The first is individual demand schedule and the another one is market demand schedule. Individual demand schedule is a tabular statement or is a table which shows various quantity of a given commodity which a consumer, that is a single consumer, is willing to buy at all prices within a given period of time. So this is individual demand curve. Individual means one consumer, as we know, and in this case this is Isha. Fine. So this is Isha's demand schedule. So as seen in the schedule that when price falls, quantity demanded increases. Quantity demanded is a specific quantity of a demand schedule that a consumer will demand against a specific price. It is not an actual quantity purchased. Fine. Means at price 50, consumer is ready to buy 1 unit of ice cream. When price falls, when price will 40, consumer will be ready to buy 2 units of ice cream. And as price falls, quantity demanded increases. तो जब मैं एक particular price पर एक particular quantity की बात कर रही हूँ तो वो है quantity demanded. और demand क्या होता है? Demand changes with change in price. तो अगर मैं बोलूँ कि 50 पर कंज्यूमर की डिमांड 1 है, इट इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बिकॉज डिमांड चेंजेस विद चेंज इन प्राइस. तो ये पूरा स्केड्यूल क्या है? डिमांड का स्केड्यूल. डिमांड की वेरियस प्राइसेस पर क्या डिमांड होगी, वेरियस प्राइसेस पर क्या डिमांड होगी, उसको हमने एक टेबल में लिखा है. देन इट इज नोन एज डिमांड स्केड्यूल. ठीक है. Now market demand schedule. So market demand schedule is a tabular form where various quantity of a given commodity is shown which all consumers is willing to buy at all possible prices with a given period of time. So यहाँ पे all consumers आते हैं. So हम यहाँ पे ऑल कंज्यूमर्स नहीं लेके चल रहे हैं बिकॉज कंज्यूमर्स तो बहुत सारे होंगे, तो हमने उसको इंडिविजुअल से हटा दिया, मतलब हमने उसको एक और कर दिया. What I want to say is that कि अगर हम यहाँ पे 3-4 कंज्यूमर्स को लेकर के चलते हैं then it only wastes our time, क्योंकि जो एनालिसिस है वो सेम ही रहने वाला है. तो इससे अच्छा ये है कि हम सिर्फ एक और इंक्रीज कर लें, एक और डिमांड स्केड्यूल इंक्रीज कर लें. मार्केट डिमांड के लिए हम सिर्फ 2 स्केड्यूल ही रखें, वो बेस्ट रहेगा. बिकॉज अगर मैं 3 या 4 डिमांड स्केड्यूल रखूंगी मार्केट डिमांड को एनालाइज करने के लिए तो इससे मेरा एग्जाम में टाइम ही वेस्ट होगा. ठीक है. सो दिस इज ऋतिक्षा's डिमांड स्केड्यूल in the left hand side, and in the right hand side this is Isha's demand schedule. So at price 50, Ritiksha is ready to buy 2 units of ice cream, and as price falls, quantity demanded increases. ठीक है. तो ये ऋतिक्षा का डिमांड स्केड्यूल है और ये ईशा का डिमांड स्केड्यूल है. अब यहां से मार्केट डिमांड स्केड्यूल कैसे आएगा? So we can obtain market demand schedule by horizontally summing up individual demand. तो जो individual demand थी, तो ऋतिक्षा की एक डिमांड है, एक ईशा की डिमांड है. हमने क्या करा? हम इन दोनों डिमांडों को
सम करेंगे। सम कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल सम करेंगे। मतलब एट प्राइस 50 ईशा की डिमांड है, ईशा की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 1 यूनिट। ऋतिक्षा की कितनी है? 2 यूनिट। और हम जब इसको सम अप करेंगे दैट इज 1 + 2 = 3, देन ये हमको क्या देगा? ये हमको मार्केट डिमांड देगा। ठीक है, सो मार्केट डिमांड अब हमारी आ चुकी है। फाइन, नाउ डिमांड कर्व। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग is demand curve. Representation of demand schedule, graphical representation of demand schedule, वो demand curve होता है। Fine, and it shows the inverse relationship between price and quantity demanded. तो अभी भी हमने क्या पढ़ा स्लाइड्स में? that your as price falls your quantity demanded increases. क्योंकि जैसे प्राइस कम होता है कंज्यूमर क्या क्या करता है? उस चीज को उतना बाय करता है, बिकॉज नाउ ही इज इन पोजिशन टू बाय। अब उसको वो चीप लगती हैं, चीजें सस्ती लगती हैं, इसलिए वो खरीदता है। ठीक है, एंड जो डिमांड कर्व की स्लोप होती है, तो हर कर्व की एक स्लोप होती है, एंड जो डिमांड कर्व की स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हम पढ़ेंगे अभी। So demand curve is also of two types. The first is individual demand curve and the second is market demand curve. Individual demand curve क्या है? Graphical representation of individual demand schedule. और market demand curve क्या है? Graphical representation of market demand schedule. Fine. Individual demand curve देखो आप. At price 50, consumer is ready to buy 1 unit of ice cream. At price 40, consumer is ready to buy 2 unit of ice cream. At price 30, consumer is ready to buy 3 unit of ice cream. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज आपको याद करनी है वो ये कि हमको कर्व पर मेंशन चीजें कैसे करनी है। सो यू हैव टू मेंशन द एक्स एक्सेस, यू हैव टू मेंशन वाई एक्सेस, देन यू नीड टू मेंशन दैट quantity demanded of ice cream is shown along x-axis, price of the commodity that is price of ice cream is shown along y-axis. then आप स्केल बताओ कि x-axis पर आपने कितना स्केल लिया, दैट इज अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो क्या डिपेक्ट करता है, अगर y-axis पर आपने 1 सेंटीमीटर लिया है तो वो क्या डिपेक्ट करता है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब नाउ सी द कर्व, यहाँ पे कर्व कैसे आया? सी दिस कर्व इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कर्व है मतलब स्लोप डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या है? दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। नाउ सी स्लोप क्या होता है? y अपॉन x, y एक्सेस अपॉन x एक्सेस, और वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, और change in price upon change in quantity. Now change in price मतलब है P1 minus P, where P1 is your new price, P is your old price, Q1 is your quantity that is new quantity and Q is your old quantity. ठीक है, तो इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हम अपने स्लोप निकालें डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, तो देखो प्राइस कितने से चेंज हो रहा है? 10 से। P1 क्या है? 40, P क्या है? 50। अगर मैं पॉइंट A से B पर मैं बात करूं तो आप देखो that your P1 is 40, your P is 50. What is your Q1? It is 2 and your minus Q which is 1. So Q1 is your 2, Q is your 1, P1 is your 40 and P is your 50. ठीक है, जो इसका आउटकम होगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, नेगेटिव क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर कोई और कर्व होता और उसकी स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव आती तो वो क्या शो करता? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तब ये डिमांड कर्व नीचे नहीं जाता, ये ऊपर जाता। बट ऐसा ट्रू नहीं होता है, क्योंकि प्राइस अगर फॉल होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, तो ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं है। बट अगर यहाँ पे कोई और कर्व होता और अगर उसकी स्लोप पॉजिटिव होती तो वो कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाता, अपवर्ड होता वो कर्व। ठीक,
सो यहाँ पे स्लोप कितनी आएगी 10। स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए ये जो कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। नाउ मार्केट डिमांड कर्व। सो हर इंडिविजुअल का एक डिमांड कर्व होगा और अगर हम उसको सम अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। अगेन हम बहुत सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इट रिक्वायर्स आवर टाइम, इट रिक्वायर्स आवर एफर्ट, ठीक है, और रिजल्ट क्या सेम ही रहने वाला है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, मतलब मार्केट डिमांड में हमने सिर्फ 2 इंडिविजुअल डिमांड कर्व लिए हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है मार्केट डिमांड कर्व, लेकिन हमने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल समेशन कर लिया था पहले डिमांड शेड्यूल में, तो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट बना दिया है, ठीक है। दैट ये कैसे आया, अगेन यू हैव टू मेंशन द एक्सेस, द स्केल और ये जो पॉइंट्स हैं, और ये डी रेफर करता है डिमांड शेड्यूल को। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाई इज मार्केट डिमांड कर्व मोर फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फ्लैटर का मतलब वो फ्लैट होता जा रहा है, दैट इज वो लेटता जा रहा है, वो एक्स एक्सिस की तरफ झुकता जा रहा है। और स्टीप क्या होता है, जब वो सीधा ऐसे थोड़ा मतलब खड़ा सा रहता है, जब स्लोप थोड़ी ऐसे खड़ी रहती है, जैसे माउंटेन होता है ना वैसे रहता है, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है हमारा स्टीपनेस। फ्लैटनेस इसकी वो नीचे नीचे लेटे जा रहा है। नाउ सी, यहाँ पे मैंने ईशा का डिमांड कर्व भी बनाया है और मैंने ऋतिक्षा का डिमांड कर्व भी बनाया है। अगर मैं इन दोनों को हॉरिजॉन्टल सम अप करती हूँ, जो कि मैंने डिमांड शेड्यूल में बताया, तो मेरा ये वाला कर्व आ जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। अब अगर आप ईशा का कर्व देखो तो वो भी स्टीप है, और ऋतिक्षा का देखो तो वो भी स्टीप है, लेकिन ये जो मार्केट डिमांड कर्व है ये उनसे कंपैरिजन में फ्लैट है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व से कंपैरिजन में ये थोड़ा फ्लैट है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है 10 रुपीज से, तो उनकी क्वांटिटी जो चेंज हो रही है वो 1 यूनिट से चेंज हो रही है। मतलब जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो इसमें और उसमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे तो अगर प्राइस 10 से चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी सिर्फ 1 यूनिट से चेंज हो रही है, लेकिन जो मार्केट डिमांड कर्व है उसमें आप देखो, जब प्राइस 50 है तब हम 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, जब प्राइस 40 हुआ तब हम 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, तो 2 से इंक्रीज हो गया सीधा। तो जो प्रोपोर्शनेट चेंज है ना वो मार्केट डिमांड में ज्यादा है एज कंपैरिजन टू और इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और वो तो होगा ही, क्योंकि ये सम अप करके बना है, ये हर इंडिविजुअल डिमांड कर्व को सम अप करके बना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।